Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Sorry, I was just resetting the internet. Good evening. Yes, Anuj, largely you are correct. Absolutely. Yeah. Okay. Yes, I've updated the IR lectures. I'm just about to push them. थोड़ा सा ये ट्रम्प का दो चार चीजें और ऐड करनी फिर अब 13 lectures 14 actually. उधर we're going to take about 5 to 6 more classes. ठीक है. Private member resolution is largely raised by a private member. Half an hour discussion can be by anybody. Most welcome, Adijit. I hope all of you are aware that now the boss sessions are available for everyone. You can access them. A lot of you were asking of this in the comment section day before yesterday. We've arranged for that. ठीक है? चलिए. 5-6 more days. Parliament and state legislature. We are studying procedures. And day before yesterday, we picked up the function of government oversight, where we looked at questions, we looked at debates or motions or resolutions to raise issues. These issues can be urgent public importance or non-urgent public importance. And thereafter, we will be studying what is largely called, which is motions. अब यहाँ पे थोड़ा सा लोकसभा की एक्सक्लूसिविटी आ जाती है because we are largely dealing with adjournment motion, no confidence motion, censure motion and so on and so forth. ठीक है, तो इसको थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे कि ये कहानी है क्या, ये करते कैसे. Both adjournment motion and no confidence motion is absolutely important for the exam. Most welcome Uday. There have been questions off and on both of those aspects as well. ठीक है, so let's start. पहले मैं आपको adjournment motion और इस सब का थोड़ा सा बेस बता देता हूँ and then we will get into the technical details. हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उससे हमें कभी नहीं भूलना है, which is the executive is accountable to the legislature and in India the council of ministers are collectively responsible to the lower house. इसको हमें कभी भी नहीं भूलना है. ठीक है, चलिए. तो अजर्नमेंट मोशन की कहानी क्या है, कहां से आती है, क्यों डिस्कस करते हैं इसको. ठीक है, ये जो अजर्नमेंट मोशन का तरीका है, it is effectively just and just about getting attention on a matter of public importance. ठीक है, बट यहां फर्क क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से सीखेंगे. देखो, adjournment motion में there are two aspects. One is that you want to bring the attention of the government to something, or it could be and or you would want to criticize the government on something. The idea is you want to bring the attention and or criticize the government on a matter of urgent public importance. ठीक है, हमको प्रोसीजर्स का एक बेसिक समझ में आ रहा है कि हम प्रोसीजर में कुछ भी करते हैं या तो वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है या तो वो नहीं होता है. अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है तो 10 15 20 दिन का नोटिस लगेगा, 10 तरह की चीजें होंगी. यस और नो. ठीक. अब
इस मोशन को इफ द स्पीकर एक्सेप्ट्स, इसका मतलब स्पीकर के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो इस मोशन को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, अगर स्पीकर इस मोशन को एक्सेप्ट करता है तो फिर हाउस का जो बिजनेस होता है उस समय का वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद मोशन पे वोटिंग होती है और फिर हाउस अडजर्न हो जाता है। डू वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस? स्पीकर एक्सेप्ट्स द मोशन ऑन डिस्क्रेशन, suspends everything that is going on currently, then the motion is voted upon and then the house is adjourned. ठीक है, अगर वोटिंग हो गई और ये मोशन पास हो गया, दिस इज ऑल्सो सीन, दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड एज द सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मोशन लोकसभा की मेजॉरिटी में पास हो रहा है और लोकसभा की जो मेजॉरिटी है वही गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है। तो इसका मतलब जो लोकसभा में मैक्सिमम लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो रुक जाए और कहीं अगर सरकार से गलती हुई है तो उस बात को सामने लाया जाए। ठीक है, क्लियर, सिंपल। ये जो अडजर्नमेंट मोशन है, बिकॉज अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो इसमें कोई ऐसा नोटिस पीरियड नहीं होता। ये अडजर्नमेंट मोशन बकायदा लोकसभा रूल्स में दिया गया, इफ आई रिमेंबर रूल नंबर 57, और आप सुबह 10 बजे के पहले ये मोशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये स्पीकर का डिस्क्रेशन होता है। यहां तक क्लियर हो गया? पक्का ना? डज दिस मीन दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन? नो, it is not strong enough a reason for the council of ministers to resign. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और लेयर्ड तरीके से समझते हैं, इसको थोड़ा सा और नुआंस्ड तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखो, वन डे मोर, सॉरी, दिन की कॉट अप, सॉरी। देखो जनरली क्या होता है, जनरली देखा जाए तो generally and normally no business not included in the list of business can be transacted without the permission of the speaker. हाउस का एक बहुत ही तगड़ा टाइट टाइम टेबल है। उस टाइम टेबल को हम लिस्ट ऑफ बिजनेस कहते हैं, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। और बिजनेस एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, डिस्कशंस भी हैं, रेजोल्यूशंस भी हैं, बिल्स भी हैं, कमिटी के रिपोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है। पार्लियामेंट्री बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग। उस दिन जो शेड्यूल्ड है उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप स्पीकर की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। ये लाइन समझ आई? ये लाइन एज इट इज लोकसभा के रूल नंबर 31 में लिखी है। ये प्रीलिम्स की लाइन हो सकती है कि नथिंग कैन बी ट्रांजैक्टेड which is not on the list of business without the permission of the speaker. लेकिन अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, आप उसे रेज करते हो, आप रेगुलर बिजनेस को इंटरप्रेट करते हो, तो आप अडजर्नमेंट मोशन के जरिए यू कैन स्टॉप द करंट स्टेट ऑफ
अफेयर्स। ठीक है, एक अडजर्नमेंट मोशन बहुत ही एक्सेप्शनल होता है, बिकॉज जो हाउस के मेंबर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि ऐसा मैटर हाउस में डिस्कस हो रहा है जिसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई ऑर्डर पेपर में नहीं लिखा था, और इनफैक्ट देखा जाए तो इट इज ऑल्सो नॉट फेयर टू द मेंबर्स हु आर एब्सेंट। आप तो उसी दिन वही की वही रोक के सारा काम कर रहे हो ना। इसीलिए प्रैक्टिस यही गई है कि जब तक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ ना हो तब तक अडजर्नमेंट मोशन मत उठाना। हमको क्या लगता है कि अडजर्नमेंट मोशन तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, रिजाइन तो नहीं करने, क्या ही फर्क पड़ता है। बट द पार्लियामेंट्री सिग्निफिकेंस ऑफ एन अडजर्नमेंट मोशन is actually very, very grave, which is also why in the entire 17th Lok Sabha, not a single adjournment motion was taken. ये प्री का एनेक्डोटल फैक्ट है, क्लियर? Not a single adjournment motion was taken up in the 17th, the entire 17th Lok Sabha. ठीक है, पर्पस यूपीआई का ही है कि सरकार का अटेंशन लाना है, सरकार को किसी बात पे क्रिटिसाइज करना, क्योंकि उसके लिए नोटिस या मोशन बहुत लेट हो जाएगा। अगर आप ही की सरकार का मिनिस्टर अडजर्नमेंट मोशन रेज कर रहा है, then you are breaching the oath of a minister because you are a collective. A single ministerial decision is the decision of all the ministers, and a decision of the cabinet committee of ministers is also the decision of all the ministers. ये आप डिसएग्री इंटरनली भी तो कर सकते हो, आपको हाउस के फ्लोर पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड कैन दिस बी सब्जेक्ट टू एंटी डिफेक्शन? ऑफ कोर्स, एज अ मेंबर। उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। क्या रूलिंग पार्टी का कोई एमपी क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, बट देन द रूलिंग पार्टी हैज टू बी मैच्योर एंड सिक्योर इनफ। यार कोई बात नहीं, सवाल पूछा, जवाब दे देते हैं, भड़कने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ऑब्वियसली यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स से लेके आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसका ओरिजिनली वी हैव स्पोकन ऑफ दिस एंड इट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, गुड। अगर ये मोशन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट को किसी बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से डिसएग्री कर रहे हो, सो इट विल देयरफॉर इंडिकेट अ सेंसर। ठीक है, लेकिन अगर आप सरकार को निकालना चाहते हैं, आप अगर सरकार को निकालना चाहते हैं तो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू करके देना पड़ेगा। ठीक है, आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू करके पास करके देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ रहा है? अब सारा खेल एडमिसिबिलिटी का है। ये तो सब तब होगा ना जब नोशन होगा, राइट? इसमें कुछ दो चार प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या हमने मोशन ऑफ थैंक्स पढ़ा था? क्या मोशन ऑफ थैंक्स के बाद अजर्नमेंट मोशन आ सकता है? सवाल है।
ये कन्वेंशन के हिसाब से है कि अगर आप प्रेसिडेंट के एड्रेस के पहले अडजर्नमेंट मोशन का कोई भी नोटिस दे रहे, वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद ही टेकअप किया जाएगा, ठीक है? बिकॉज प्रेसिडेंशियल एड्रेस इज एड्रेस टू बोथ द हाउसेस, ठीक है? क्या प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ही दिन अडजर्नमेंट मोशन टेकअप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। क्या ये हमारी हिस्ट्री में हुआ है? बिल्कुल हुआ, 1967 में हुआ है। An adjournment motion was taken up in 1967 on the day of the motion of thanks, on the day of the president's address. ठीक है? Clear on this? In fact, थोड़ा सा आपको एक एनेक्डोट बता देता हूँ तो बहुत क्लियर से समझ में आ जाएगा। It is the date is 18th March 1967, one of the most, you know, dramatic days of the Indian Parliament. प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ खत्म, फिर लोकसभा राज्यसभा अपना अलग अलग असेंबल हुई। Members of certain opposition groups did not agree with this convention and pressed कि भाई हमारा जो adjournment motion है वो आज की आज टेकअप किया जाए। और there were two other notices of no confidence motions also on the day itself. ठीक है? Clear on this? And the Prime Minister agreed. So, motion of no confidence was taken up, but adjournment was not. क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस का मैटर ही उठा लोगे तो अडजर्नमेंट का क्या फायदा रह जाएगा? आया समझ में? ये एक्चुअली हुआ है। Those were the days of great parliamentary integrity. तो कहने का मतलब यह है, प्री का सवाल यहां से बनता है कि अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अंडर डिस्कशन, देन adjournment motions are not allowed. ठीक है? ये समझ आया? The speaker can hold over this motion for as long as you want. Two, normally, adjournment motions are not allowed during budget sessions and not during the discussion of motion of thanks. प्रेसिडेंट का एड्रेस खत्म होता है, फिर मोशन ऑफ थैंक्स रेज होता है, इफ यू रिमेंबर। सो बजट डिस्कशन के टाइम पे, मोशन ऑफ थैंक्स के डिस्कशन के टाइम पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे आप अडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस या डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है? अब सवाल उठना चाहिए कि सर बजट के टाइम पे एंड डिस्कशन सेपरेट होता है, एड्रेस अलग है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस अलग है, हर्षवर्धन अगेन, प्रेसिडेंशियल एड्रेस अलग है, मोशन ऑफ थैंक्स अलग है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद मोशन ऑफ थैंक्स वोट होता है, यस और नो? यस। आर्टिकल 85 86 में मोशन ऑफ थैंक्स थोड़ी लिखा है, मोशन ऑफ थैंक्स तो प्रोसीजर में लिखा है। फिर तो बजट के टाइम पे, मोशन ऑफ थैंक्स के टाइम पे, इट इज द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंशियल एड्रेस। क्यों अडजर्नमेंट मोशन नहीं लिया जाता? बिकॉज द मेंबर्स हैव sufficient opportunity to focus the attention of the house on any matter. अगर बजट का डिस्कशन चल रहा है और मोशन ऑफ थैंक्स का डिस्कशन चल रहा है तो आप तो कोई भी मुद्दा उठा सकते हो, यस और नो? आप तो कोई भी मुद्दा उठा सकते हो, तो मेरा अडजर्नमेंट मोशन की क्या जरूरत? और अडजर्नमेंट मोशन को एडमिट करने के लिए, स्पीकर एडमिट करे, उसके लिए कुछ बहुत बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसके बिना नहीं हो पाएगा, ये इसेंशियल है। द फर्स्ट ऑफ देम इज कॉल्ड
मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझते हैं इसको, लिंक्ड टू आवर कोर कॉन्सेप्ट। देखो जनरली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन adjournment motion must have a direct or an indirect relation to the conduct or some kind of a default on government। यह हवा में नहीं हो सकता, and must be in the nature of criticism। या तो गवर्नमेंट को कुछ करना था, उन्होंने किया नहीं, या उन्होंने जो किया वो गलत किया। अगर गवर्नमेंट की बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ कोई ड्यूटीज है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको उन्होंने फेल किया है, तब आप एडजर्नमेंट मोशन रेज कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट का किसी इशू में इंटरवीन करने का कोई हक नहीं बनता, तो आप एडजर्नमेंट मोशन नहीं ला सकते। ठीक है, एन एडजर्नमेंट मोशन, ध्यान से सुनना, कैन ऑल्सो नॉट बी यूज्ड where a minister is exercising discretionary powers। अगर कोई लॉ किसी मिनिस्टर को कोई डिस्क्रिशनरी पावर दे रही है और जो भी डिसीजन मिनिस्टर साहब ने लिया है, आप उस पर एडजर्नमेंट मोशन नहीं उठा सकते। बात समझ आई? An adjournment motion is to keep a check on what the government is supposed to do। I'll give you enough examples, don't worry। Let me give you the theory, I'll give you the examples, don't worry। पूरा मैं पढ़ाई करके पढ़ाता हूं भाई, ऐसे नहीं। An adjournment motion on a matter concerning the state government is also inadmissible। कि स्टेट ने ये नहीं किया, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड या अगर स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इशू है, फिर आपको ये एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड इशू है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने वो नहीं की, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। अगर कोई काम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का, उसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं, आप एडजर्नमेंट मोशन नहीं उठा सकते। क्लियर? ठीक, अब ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अब यहां पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। एक तरफ हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है जो स्टेट सब्जेक्ट है, और दूसरी तरफ हमारे पास वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, जो एक तरह से जाके देखा जाए तो नेशनल सब्जेक्ट। बोथ सेंटर एंड स्टेट्स हैव टू वर्क ऑन इट। सो इन अ सिचुएशन लाइक दिस, अगर कास्ट बेस्ड वायलेंस है, किसी स्टेट में कास्ट बेस्ड वायलेंस है या ट्राइबल वायलेंस हुई, आप देखना पार्लियामेंट पे इसमें सवाल उठते हैं, बिकॉज देन यू विल बी रेफरिंग द क्वेश्चंस टू द होम मिनिस्टर। समझ आ रहा है? और उनको कहा जाता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट में इंक्वायरी करिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यस, बिल्कुल। कोई भी ऐसा एडजर्नमेंट मोशन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जो एक स्टेट में हो रही है, किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की वजह से अगर यूनियन का कोई रोल आ रहा है, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल सिंपल है। आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस?
ठीक है, अब सवाल उठता है कि अगर कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाए, क्या उस पे अडजर्नमेंट मोशन सेंटर में एंटरटेन हो सकता है कि? ध्यान से सोचो। Can the center dissolve the state assembly through 356? So, can there be a central role in the dissolution of state assembly? अगर सेंटर का रोल है तो adjournment motion है। प्रिंसिपल क्या था? If the center fails to fulfill their constitutional and legal duties, they are subject to an adjournment motion. रूल तो सिंपल है, बाकी तो इतनी देर से हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। यस और नो? अगर सेंटर का कोई रोल नहीं है तो अलग बात है। So can we have an adjournment motion on the discussion of a Supreme Court judgment? No. No. The union, the union is not supposed to, is not part of the judgment making process. The union is not a part of the judgment making process. Union cannot influence the judgment. Yes or no? Very good. Separation of powers. If there is an adjournment motion seeking to discuss a Supreme Court judgment, that will not be admissible. ठीक है, ये क्लियर है? Good. Now comes to the next question. अभी आजकल वो ईरान और इजराइल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, सेम फॉर हाई कोर्ट आल्सो. यस. Conduct of a foreign government या फिर events in a foreign country that the center has no jurisdiction over, can you discuss it in an adjournment motion? No. आपको इजराइल पैलेस्टाइन डिस्कस करना है, आपको मिडिल ईस्ट क्राइसिस डिस्कस करना है, आपको ईरान इराक डिस्कस करना है, आपको नॉर्थ सुडान साउथ सुडान डिस्कस करना है, करिए हाफ एन आवर डिस्कशन. बट आप adjournment मोशन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने ये नहीं किया बट ये किया और ये किया और ये नहीं किया, कि क्यों आपने यूएस की बात मान ली और क्यों आप 18-20% टैरिफ पे ओके और 10 तरह की चीज. समझ में आ रहा है? दूसरा, the motion has to specifically be very definite. Must be very clear. Just इम्पैक्ट तो देश को 10 चीजें कर रही है हर्ष, लेकिन उसके लिए हम कर क्या सकते हैं वो मैटर करेगा ना. आप बहुत प्रिसाइज होने चाहिए और एक एडजर्नमेंट मोशन में एक ही इशू लिखा होना चाहिए. मल्टीपल कॉजेज नहीं ले सकते कि आप पॉलिटिकल इश्यूज उठा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, लॉलेसनेस है. ये तो रैंडम हो गया ना.
या गवर्नमेंट का एटीट्यूड ठीक नहीं है, या ट्रेन लेट चल रही है। इशू बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, and the issue must always have a factual basis. बहुत क्लियर अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स होने चाहिए, और जो भी इमोशन रेज कर रहा है उसके पास ये अजम्पशन है, भाई आप अपनी रिसर्च, आप अपने फैक्ट्स लेके आए हो। और तीसरा, मामला बहुत अर्जेंट होना चाहिए, हवा में नहीं चले। इट हैज टू बी अर्जेंट, could be anything but has to be urgent, specific and responsibility of the minister. तो भाई ये कहना कि भाई इंडिया की इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, हमने एक टाइम पे, आई रिमेम्बर देयर वाज दिस ह्यूज इशू बैक इन द डे, इसमें बहुत बवाल हुआ था कि हावड़ा ब्रिज को रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने एक ब्रिटिश फर्म को दे दिया था, उसमें बहुत क्वेश्चंस हुए थे कि बलूचिस्तान या सिंध के आसपास कुछ डकैतीज हुए थे रेलवे डिजास्टर्स को लेकर। So this is all decided on a case-to-case basis. Are we clear on this? Rail crash, air crash, बहुत सारी चीजें। A matter is urgent only when it is of a very recent occurrence, and it has to be taken up at the first available opportunity. Yes. ठीक है, good. Aravali should have been one of those. And it should be of public importance. हाँ, एलपीजी है भाई, एक सिटिंग में एक ही मोशन मूव होगा, एक मोशन में एक ही इशू डिस्कस होगा, इट हैज टू बी वेरी रीसेंट, एंड एन adjournment मोशन कैन नॉट बी अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। ये समझ में आ रहा है कि उसने अपनी प्रिविलेज वायलेट कर ली, उन्होंने अपना जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं या जो मेंबर के प्रिविलेजेस हैं वो वायलेट करी, इसे सब रोक के हम डिस्कस करें। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक मैटर नहीं हो सकता कि देखो ऐसा होने वाला है। अगर कोई इशू कोई कोर्ट ऑलरेडी एंटरटेन कर रहा है, अगर कोई मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, उस पर आप अजर्नमेंट मोशन नहीं उठा सकते, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो सबरीमाला हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्पीकर के कंसेंट का। The speaker will give his consent to the moving of an adjournment motion अगर वो इस बात से सेटिस्फाइड है कि ये डेफिनेट, अर्जेंट और पब्लिक है। और क्योंकि ये मैटर डेफिनेट, अर्जेंट और पब्लिक है, yes, I know it has been in the news today, the speaker, मतलब very rightfully so, should take the motion into order. अगर अर्जेंट है
पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट है, तो यू शुड गिव रीजन। ठीक है, अगर स्पीकर अपना कंसेंट नहीं देते, वो उनका एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन है, उस पे उन्हें कोई सफाई, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये बात हाउस के सामने रखी भी नहीं जाएगी। कंसेंट दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और अगर नहीं दिया, हाउस में कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता कि भाई आपने कंसेंट क्यों नहीं दिया। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग इतने दिन से क्या बात कर रहे हैं? लेयर वन, लेयर टू। लेयर वन इज नॉलेज, लेयर टू इज एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। अब इसी चीज को मैं रोल ऑफ द स्पीकर, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें अप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? मेंस में कम से कम 3 बार पूछा है, हाउ डज द पार्लियामेंट कीप द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। एक पॉइंट लिखूंगा ना कि वन ऑफ द इश्यूज इज द एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन ऑफ द स्पीकर इन अलाउइंग adjournment मोशंस। कहां दिखा है आपने मेंस के आंसर्स में? पेज खत्म हो जाता है, आंसर नहीं खत्म होता। इतने पॉइंट्स होने चाहिए। इसका मतलब नहीं कि 100 फॉन्ट साइज में आंसर लिख रहे हैं। यस, हमको एक्सेलेंस, इसलिए ये मौका है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस एंड 2.5 महीने हैं प्री को, इसको हम इसलिए इतना डेप्थ में पढ़ते हैं। मेरी तो जिंदगी की बदकिस्मती यही है कि मेंस का क्रैश कोर्स पढ़ाते पढ़ाते पूरा मेंस पढ़ाना पड़ता है, और प्री का क्रैश कोर्स पढ़ाते पढ़ाते पूरा प्री का थोड़ा सा मेंस ही करना पड़ता है। बट अपन पढ़ाई एकदम, अगर क्लास में बैठे हैं तो फिर एकदम 10 on 10 पढ़ाई करें। ये इसमें ये नहीं कि भाई अच्छा ये इतने में इतना मिलेगा, इतना क्रैश कोर्स, ये नहीं होता। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। यस, यहां तक समझ आया? गुड। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट adjournment motions। ठीक है, अब motions of confidence, this will include a confidence motion also, and what is popularly called a motion of no confidence। ठीक है, ये हमको सारी चीजें समझ में आ गई adjournment की। So now do we understand that adjournment and censure is more or less the same? There is no difference। which is वो थोड़ा हमारा हरी पीली लाल नीली किताब ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, वो सेंसर अलग बोले, ऐसे सेंसर अलग है नहीं। ठीक है, by procedure there is nothing different। which is why in the pre you will see questions on adjournment and you will see no confidence, you will rarely, next to never see a question on censure।
because there is nothing separately called sensor. ठीक है? यार तो जो गलत बात है, you must figure this out, है ना? इसको सॉल्व करना चाहिए. ठीक. Now take a quick 5-minute break to refresh because this is going to be intense. फिर इसको कर लेते हैं आगे. And then we'll move to legislative and financial business. A quick 5-minute break, then we'll start. ये थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा.
चलो नेक्स्ट स्टार्ट। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है? Give me some time. I'm in the middle of something important, है ना? थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। There is absolutely no specific rule. बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को लेके कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन ओवर द इयर्स ये जो नया प्रोसीजर है, दिस इज इवॉल्व्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो प्रैक्टिस जो हमने उठाई है, दिस प्रैक्टिस इज वेयर जनरली नो सिंगल पार्टी इज इन अ पोजिशन टू कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। आप समझ रहे हैं? अगर सिंगल पार्टी मेजॉरिटी है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, यस और नो। द reason why you have no confidence motion as a practice is because of what is called coalition politics, because of the changing nature of composition. ठीक है? Clear on this? Yes. तो अगर प्री में आता है, कि भाई इज देयर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन और नॉट, वेयर इज दिस मेंशन? भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा। आर वी क्लियर ऑन दिस? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा, कोई लॉ में भी नहीं लिखा, राइट? लेकिन कोई स्पेसिफिक रूल एज सच नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ओरिजिनली नहीं था। ये डेवलप हुआ, ओरिजिनली ये बिल्कुल नहीं था। बट बिकॉज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स we now have rule 198 of Lok Sabha rules. ठीक है? क्लियर? ये समझ आया? ओरिजिनली नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई सिंगल पार्टी किसी हाउस में मेजॉरिटी कमांड करने की पोजीशन में नहीं है, तब आप ये मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनना। जो रूल 198 है, जो रूल 198 है, this 198 rule is only and only for a no confidence motion. आज भी कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई भी रूल नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? There is no rule for confidence motions, but for no confidence motions you would still have rule 198 in a clearer form. ठीक है? Because of legislative accountability, parliamentary accountability और executive accountability. ठीक है? नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहे मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो या कोएलिशन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए वैलिड होगा। यस, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाए जिसकी वजह से लोगों को मिसट्रस्ट हो जाए। लेकिन कोएलिशन पॉलिटिक्स
की वजह से अब कॉन्फिडेंस मोशन भी एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब इसको थोड़ा ध्यान से और समझते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्योंकि रूल्स में लिखा हुआ है, तो इसके कोर प्रिंसिपल्स 2 मिनट का काम है, ये सीख लेते, देन विल गेट इनटू द डेप्थ इन द डिटेल्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। I'll also give you some data facts also just in case प्री में आता है। प्रिंसिपल तो सेम ही है कि भाई काउंसिल मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। ठीक, तो अगर एक एमपी को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के कोई ऐसे एक्शंस हैं जो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए, सो यू कैन मूव अ मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इससे प्री का एक और पॉइंट निकल गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सिंगल मिनिस्टर का होता ही नहीं, इट इज ऑलवेज कलेक्टिव इन नेचर, एंड दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ ट्रस्ट वोट। अगर नो कॉन्फिडेंस फेल हो गया तो कॉन्फिडेंस पास हो गया ना, और अगर कॉन्फिडेंस फेल हो गया तो नो कॉन्फिडेंस पास हो गया। ये सर, लेकिन रूल सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन बताता है, कॉन्फिडेंस मोशन नहीं। ठीक, सो अंडर रूल 198 ये मोशन तभी एडमिट होगा अगर कम से कम 50 एमपी इस पे साइन करेंगे। जब स्पीकर ये मोशन हाउस के सामने रखेगा तो पहले 50 एमपी को अपनी जगह पर खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई, आई सपोर्ट दिस। इनका सपोर्ट लगेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये पीछे पीछे नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है। डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का भी यही हो रहा था, हाउस में यू हैव टू सीक फॉर रिमूवल, 50 लोग से ज्यादा खड़े होने चाहिए। सो विद नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑल्सो, आपने मोशन रेज किया, स्पीकर ने एक्सेप्ट किया, स्पीकर ने हाउस के सामने रख दिया, कम से कम 50 लोगों को खड़ा होना चाहिए। फिर उस मोशन पे डिबेट होगी और फिर उस मोशन पे वोट होगी। ठीक है, और अगर ये मोशन अडॉप्ट हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कहानी इतनी सी सिंपल है। यहां तक समझ आया? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, इसको थोड़ा सा और फैक्ट से समझते हैं। सो नाउ लेट्स गेट इनटू डीपर थ्योरी। देखो, किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड दैट इज टू द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस। और सरकार को हमेशा उस पॉपुलर इलेक्टेड हाउस, जिसको हम लोअर हाउस या लोकसभा या असेंबली कहते हैं, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम सरकार के पास उनकी मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार को अपनी मेजोरिटी या अपनी स्ट्रेंथ हाउस के फ्लोर पे डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये जरूरत पड़ती है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारी लोकसभा में मेजोरिटी है लेकिन प्रूव करके दिखाओ, तो या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होगा या हाउस का कॉन्फिडेंस जीता जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन का बेसिक फर्क क्या है? कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड बाय द रूलिंग पार्टी, नो कॉन्फिडेंस पार्टी
No confidence motion is generally introduced by the opposition party. फर्क समझ आया? रूलिंग पार्टी हाउस में अपना कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेगी और बोलेगी देखो मैंने दिखा दिया तुमको कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं. जो अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट के टाइम पे मेरे काफी कॉलीग्स भी कर ही रहे, जिसकी फनी मतलब. हाँ, 5-6 दिन में हो जाएगा. ठीक है. अब इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं. मेरा एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है. आई एम कमिंग टू दिस. जब रिजल्ट क्लेम ही नहीं करना तो फिर ये सब चिल्ला चिल्ली करना ही नहीं है ना, इसलिए हम लोग शांत रहते. जब हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनडिविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज लाइक ऑरा फार्मिंग. यस, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है about the individual responsibility of a minister. यहां पे हमारे और यूके में फर्क आ जाता है. ठीक है. On the individual accountability of the minister to the parliament. ये बहुत बड़ी बात है. The Parliament of India cannot remove a single minister. प्री का सवाल बना कि नहीं बना? इसी चीज को फिर हम एनालाइज करके कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही तो पॉइंट लिखते हैं. बट इसका कोर तो पता होना चाहिए. द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिमूव अ सिंगल मिनिस्टर फॉर ए सिंगल रॉन्ग डूइंग. चाहे मिनिस्टर कितना भी करप्ट काम करे, या तो सरकार निकालेगी या कोर्ट. In the UK there is individual legal responsibility. There is the difference. है कि नहीं? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत मॉरली देखा जाए. आप पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस देखिए, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स ने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन किया है. उनको किसी ने फोर्स नहीं किया था. बहुत सारे. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर, और ये एग्जाम्पल्स आपको आगे काम आएंगे. देयर वाज अ मिनिस्टर called R.K. Shanmugam Shetty. He resigned largely because he said there was an error of judgment. He had given an order to withdraw some income tax cases. In 1948 की बात है. 1956 में लाल बहादुर शास्त्री resigned for a serious railway accident. 1958 में कृष्णमाचारी साहब रिजाइंड. वो एक मुंद्रा का एक कंट्रोवर्सी उठी थी, द मुंद्रा डील एंड LIC का एक स्कैम उठा था. 1959 AP Jain साहब had resigned because of the strong criticism against food security in the country. 1962 Krishna Menon साहब had resigned because of the Chinese invasion. 1963 Malviya Sahab had resigned because of newspaper reports of certain backdoor deals. 1966 गुलजारी लाल नंदा साहब had resigned जब पार्लियामेंट हाउस के सामने एक बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था.
1973 में करण सिंह साहब had also resigned. एक सिकंदराबाद हैदराबाद के पास एक जगह है, वहां पे एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, वहां उसकी वजह से। ये जो कलेक्टिव प्रिंसिपल का जो आइडिया है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाई वी स्टडी लेजिस्लेचर, इलेक्शंस, एग्जीक्यूटिव टुगेदर। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आइडिया है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो आइडिया, जो डॉक्ट्रिन, जो फिलॉसफी है, ये दो प्रिंसिपल्स पे, ये दो आइडियाज पे, ये दो एंटिटीज पे टिकी हुई है कि आप बिना पीएम की एडवाइस के तो मिनिस्टर बन ही नहीं सकते ना। नो पर्सन इज नॉमिनेटेड टू द काउंसिल विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो आपकी एंट्री और आपकी एग्जिट दोनों प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंडेंट है। No person is nominated to the Council of Ministers except on the advice of the Prime Minister, and no person is retained as the council in the council if the Prime Minister says मुझे ये डिस्मिस करना है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसेंस ही यही है कि पॉलिसी डिस्कशन स्टेज पे है, द मिनिस्टर्स कैन डिसएग्री, कैन डिसेंट, बट एक बार डिसीजन हो गया, you have to stand by the advice for all reasons, stand by the ministers for all reasons whatsoever. आपको अगर इस किसी भी मिनिस्टेरियल डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ पॉलिसी को लेकर डिसएग्री करते हैं, the only option you have is to resign, nothing else. और अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि योर कॉन्डक्ट इज लाइक यू आर नॉट हैप्पी वेयर यू आर, तो प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर योर रेजिग्नेशन। ठीक है, yes. ये भी बहुत बार हुआ है। yes. कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, और यहां कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर एक ही शब्द है, पर्यायवाची है। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा का सिंपल मतलब यह है कि ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर but also a substantial majority of the members of the Council of Ministers should be chosen from the Lok Sabha. यही तो मतलब हुआ। If the Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha, तो ज्यादातर मिनिस्टर्स लोकसभा से आने चाहिए, yes or no? बट अगर मिनिस्टर्स राज्यसभा से भी आते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर भी राज्यसभा से भी आता है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है कि एक्स मिनिस्टर वाई हाउस से आना चाहिए, कि अरे सीरियस मिनिस्ट्री है, हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री है, तो लोकसभा से ही आना चाहिए, ऐसा नहीं। दिस इज ऑल्सो व्हाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक सेंस। अगर आपके फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स राज्यसभा में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं है कलेक्टिव, राइट? कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा इज अ वेरी सीरियस एस्पेक्ट। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सरकार की हर छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी एक्शन हमें लोकसभा के पास लेके जानी, तुमको कैसा लगा, सीकिंग अप्रूवल, है ना? सरकार को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत कहां है? लेजिस्लेशन के लिए और फाइनेंस के लिए। यस और नो? सीधी सीधी बात करते हैं, और कहां पे है? बस सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए कहां पे?
दो जगह, और जब जब बुलाया जाए तो अपनी पॉलिसी जस्टिफाई कर दो, बस। ठीक है। और अगर हाउस ये क्लियरली दिखाता है कि भाई मैं तो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगा, दैट इज द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर रिजाइन नहीं हुआ, देन द हाउस कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व। ये बात ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद अगर नेक्स्ट सेट ऑफ मिनिस्टर्स नहीं मिले तो भी हाउस डिसॉल्व होगा। ऐसे समझो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, रिजाइन कर दिया, अब यू हैव ऑल्टरनेट मिनिस्टर्स या ऑल्टरनेट स्ट्रेंथ है, तो फिर डिसॉल्व नहीं होगा। रिजाइन कर, पास हो गया और आपने रिजाइन नहीं किया तो भी हाउस को फोर्सफुली डिसॉल्व किया जा सकता है। इस केस में द प्रेसिडेंट विल नॉट बी बाउंड बाय योर एडवाइस, बिकॉज आप तो मिनिस्टर हो रहे ही। यस और नो? रेसिग्नेशन या डिसोल्यूशन तभी होता है जब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है। सरकार किस चीज को इतनी अहमियत देती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों पास हो रहा है? बिकॉज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है। भाई लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस किस चीज के लिए है? इट इज द एक्स दैट मैटर्स। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सीधा सीधा पास हो गया, बात ही खत्म हो गई। पर और भी तो रीजंस हो सकते हैं इनके जैसे। यस, ऑफ कोर्स हर्ष। जैसे वोट ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स। साल का पहला सिटिंग है, नई नई लोकसभा चुन के आए हो, आप ही की पॉलिसी का प्रपोजल प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। अगर आपके हाउस को आप ही के खर्चों पे भरोसा नहीं, बजट इज नॉट जस्ट अ मॉनेटरी डॉक्यूमेंट, इट इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इट इज फाइनेंशियल पॉलिसी, इट इज लार्ज पॉलिसी। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, उसकी वजह से हमारे रूल्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन है। ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक है। डिसोल्यूशन तभी होगा अगर प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाइड है कि एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन और डिफीट के बाद बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रेसिडेंट को जो डिफीटेड गवर्नमेंट है मुझे उनकी एडवाइस सुननी है या नहीं सुननी है, विदाउट इवन एक्सप्लोरिंग द ऑल्टरनेटिव। ठीक है, क्लियर? और अगर ऑल्टरनेट गवर्नमेंट नहीं मिलती है, आप हाउस डिसॉल्व करते हो, एंड जब तक नई सरकार नहीं आती तब तक ये जो डिफीटेड गवर्नमेंट है इसको केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं। ये कोई मेजर पॉलिसी वॉलिसी कुछ नहीं कर सकते। अब समझ आया शब्द केयर टेकर गवर्नमेंट? ठीक है, क्लियर? स्टेट्स में ऐसा नहीं है।
अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की डिफीट हो जाती है और रिजाइन कर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये बहुत गलती करते हैं लोग। स्टेट्स में ऐसा नहीं है। स्टेट्स में द पोजीशन इज डिफरेंट। अगर डिफीटेड गवर्नमेंट रिजाइन करती है और उसके बाद गवर्नर को यह डिसाइड करना है कि भाई ऑल्टरनेट गवर्नमेंट है या नहीं, और गवर्नर को ऑल्टरनेट गवर्नमेंट नहीं मिलती, तब गवर्नर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 356 में रिपोर्ट करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन। आया समझ में? आर बी क्लियर? इसलिए आपने स्टेट्स में बहुत रेयरली सुना होगा केयरटेकर गवर्नमेंट। ठीक है? आर वी ओके विद दिस? यहां तक समझ गए? हर्षवर्धन बेटा, the one possibility that is very unlikely to happen, बिल्कुल कर सकते हैं। yes, can't act as a sovereign administrator। ठीक है? ठीक है? of course speaker has discretion। यहां तक समझ आया? चलो, अब इसको अगले लेवल पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा सुन लो पहले। ठीक है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में इंडिविजुअल मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो पॉसिबल है ही नहीं। सिर्फ एक ही मोशन एडमिसिबल है, विच इज द वांट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। है ना? वांट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, दिखाओ। ठीक है? मैं आपको थोड़ी देर पहले सेंसर मोशन के बारे में बता रहा था कि सेंसर मोशन इतना कुछ खास होता नहीं। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन में एक्चुअली फर्क क्या है? अ सेंसर मोशन में ग्राउंड्स, रीजंस होने चाहिए, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, राइट? On what specific reasons are you undertaking a charge against the state, against the government? That is to be very clearly mentioned in the censor motion। ठीक है? नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई ग्राउंड्स की जरूरत नहीं। मुझे नहीं आता, आई डोंट लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग टुडे, so I'm going to give you a no confidence motion। समझ आ रहा है? ठीक। आप रीजन दो या ना दो, डेफिनेट होना चाहिए। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप सबमिट कर भी रहे हो और उसमें रीजंस भी लिख के दे रहे हो, वो रीजंस हाउस में कभी पढ़े नहीं जाते। ठीक है? दोस रीजंस आर मतलब डिस्कस किए जाते हैं, वो रीजंस नो कॉन्फिडेंस मोशन का पार्ट नहीं होते। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक लाइन में लिखा होता है। ठीक है? क्लियर ऑन दिस? ग्राउंड्स आपको बताने हैं या नहीं बताने हैं, स्पीकर के डिस्क्रिप्शन। ठीक है? यस। अगर सरकार, अगर ऑल्टरनेट गवर्नमेंट मिल गई तो आप मतलब राज्यसभा एमपी तो आप कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ठीक है? यस। सेंसर मोशन के लिए आपको हाउस की लीव लेने की जरूरत नहीं।
सेंसर मोशन पे कब डिस्कशन होगा और कब नहीं होगा ये सरकार तय करेगी। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि सेंसर मोशन का ये टाइम पे मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो कुछ जहां पे कोई चीज नहीं उसके लिए एक अलग से हमने बना रखा है, नो डे येट नेम्ड मोशन। जो कुछ नहीं होगा वो यहां होगा, उसके अंदर आप सेंसर मोशन डिस्कस कर सकते हैं। सेंसर मोशन कैन बी अगेंस्ट द होल ग्रुप, कैन बी अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, क्लियर? इट कुड बी फॉर द फेलियर टू एक्ट ऑन अ पॉलिसी, इट कुड बी कि भाई आपने ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोशन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, यहां पे भी स्पीकर का डिसीजन है मुझे सेंसर अलाउ करना है या नहीं करना है। ये समझ आया? यस, नहीं, कोई रिजिग्नेशन नहीं है। तो अब हमको इन तीनों में फर्क दिख रहा है? एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर और नो कॉन्फिडेंस में अब फर्क दिख रहा है? यहां हाउस की लीव ली जाएगी, यहां नहीं ली जाएगी, यहां ली जाएगी। ठीक है, ये रूल्स में है, ये रूल्स में है, ये रूल्स में नहीं है। करेक्ट और नॉट? यस। Adjournment motion is against the government on a urgent public importance which is definite, yes, and recent. यहां पे मिनिस्टर, ग्रुप या पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड यहां अगेंस्ट ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ना यहां रिजाइन होगा ना यहां रिजाइन होगा, बस यहां होगा। लीव द हाउस मतलब द हाउस विल स्टॉप एवरीथिंग एल्स। adjourn, रिमेंबर adjournment मोशन, मोशन पास होता है, हाउस adjourn होता है, फिर adjournment मोशन पे डिस्कस होता है। यस, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, हाउस adjourn होता है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कस होता है। सेंसर में कुछ नहीं होता। हाँ भाई आप सुना लो, डांट लो, निकल जाओ, क्या चलो। ठीक है, क्लियर? ये लीव ऑफ द हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाउस अपना लेजिस्लेटिव बिजनेस कर रहा है। आपने बोला ये रोको ये रोको ये रोको, ये सब मेरे को गवर्नमेंट का ये अच्छा बात नहीं लगा है, ये ऐसा किया वो मेरे को अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन में क्रिटिसिज्म जरूरी है। इस और एडजर्नमेंट में और सेंसर में क्या फर्क है? रीसेंट, डेफिनिट फर्क है। एनसीएम में भी रोको रोको, अरे भाई सरकार को ही हम नहीं, आई डोंट थिंक वी आर वर्किंग आउट। It's not what it was. I don't feel for you the same way. Censure is like, why aren't you? Why aren't you paying attention? Why aren't you there when I need you? Are we clear on this? Do we understand this? तो सेंसर में यही होगा कि अच्छा भाई तुम ताले ही मार रहे हो। सेंसर इज नैगिंग। तो ठीक है, जिस दिन कोई काम नहीं कर रहे होंगे उस दिन भी लगा देंगे मोशन, डिस्कस कर लेंगे, खत्म। यस, NCM is breakup,
adjournment motion is toxicity. Shades censure do we understand this now? All okay? Adjournment motion is toxicity. NCM is breakup. Censure is breadcrumbing. ठीक है, आगे समझ। गुड, ठीक है। कि आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड निशांत। मोशन 10 दिन में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? ये भी हो सकता है कि इस सब को मैनेज करने के लिए एक मिनिस्टर रिजाइन कर दे और वो हाउस में आके स्टेटमेंट भी दे दे, चलेगा, ठीक है। क्लियर? तो अब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मोशन भी समझ लेते हैं। चलो, ये तो अपार्ट फ्रॉम द 198 established प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई रूल नहीं है, ये बात तो हमने पूरी की पूरी सीख ली। ये क्यों नेसेसरी है? इज बिकॉज ऑफ coalition, political party split, hung parliaments and so on and so forth. तो जब अरे कोई रूल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी रूल के अंदर एडमिट नहीं हो सकता। कल को पीआईएल फाइल करने जाओगे तो ऐसे ही तो कोर्ट में नहीं खड़े हो जाओगे, हेलो चेचा पीआईएल। यूपीएससी वालों को बोलोगे रिजल्ट में नाचना गाना बंद करें, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। पीआईएल फाइल तो तब भी होगी ना, चाहे चिट्ठी से फाइल हो, चाहे लेटर से फाइल हो, पीआईएल फाइल तो तब भी होगी। So confidence motion is generally admitted under Rule 184, which is discussions of urgent public interest. ठीक है, ये हाउस के सामने रखा जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां मैं आगे और लिख देता हूं। कॉन्फिडेंस मोशन में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है टू टेक द लीव ऑफ द हाउस, ठीक है। क्लियर? एनसीएम में लिखा होता था वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, यहां लिखा होता है द हाउस एक्सप्रेसेस इट्स कॉन्फिडेंस। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस इज द सेम, and if both confidence and no confidence motions are on the floor, you will first discuss the confidence motion and then the no confidence motion. बेटा लीव ऑफ द हाउस मतलब बाकी सारे काम छोड़ के पहले ये करेंगे, ये मतलब है, ठीक है। क्लियर? भाई नो कॉन्फिडेंस के लिए 50 मेंबर का खड़ा होना जरूरी है। फिर स्पीकर डिक्लेयर करेगा लीव इज ग्रांटेड, फिर वो एक दिन तय करेगा जो 10 दिन के अंदर होगा, राइट? कॉन्फिडेंस मोशन में वो सीधा स्पीकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से डिस्कस करेगा,
लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बात करेगा और 1-2 दिन का टाइम देगा। यहां जो 10 दिन के अंदर डिस्कस करना कंपलसरी है वो यहां नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? नॉट रूल्स डायरेक्टली। आउटकम सेम ही है, रिजाइन तो यहां पे भी होगा, ठीक है, और यहां पे भी इंटायर सीईओ है। अब थोड़ी सी इसका, अगर ये आजकल प्री में पूछता ना, एक प्रोविजन पूछता और उसका एक फैक्ट पूछ लेते हैं। वीव हैड, अगर मैं सिर्फ लोकसभा की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली लोकसभा के 72 इयर्स हो गए ना? यस और नो? 72 प्लस इयर्स हो गए लोकसभा को। फर्स्ट लोकसभा वाज 1952। यस, ठीक है। सेवेंटी फोर। पिछले 74 सालों में वी हैड 28 motions of no confidence and 12 motions of confidence, ठीक है? दिस इज फ्रॉम फर्स्ट टू द 17th लोकसभा, ठीक है? हमारे 17 लोकसभाओं में 28 motions of no confidence and 12 motions of confidence have all been admitted. Raised नहीं, admitted. Are we clear on this? Yes or no? 18 तो अभी चल ही रहा है, तो इसके बारे में ज्यादा बात कर नहीं सकते। सबसे ज्यादा एडमिट हुए थे 6 और 6। दिस वाज इन द थर्ड लोकसभा एंड द फोर्थ लोकसभा। थर्ड लोकसभा इज 62 to 67 and fourth लोकसभा is 67 to 70, ठीक है? 6-6 each। लास्ट 17th लोकसभा में एक बार हुआ था। आर वी ओके विद दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? Good. Over the years, of course, this period has been reduced. ठीक है, पक्का? तो अब हमारे कोर प्रोसीजर खत्म हो गए, जनरल प्रोसीजर खत्म हो गया, और इतना प्रॉपरली कवर करा है दैट वी शुड नाउ नो आवर फंडास वेरी राइट। अब वो इधर उधर का रूल कुछ भी पूछ ले, हम लोग को प्रिंसिपल आता है, हमको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? डन? Tomorrow I'll only take a class. Yes. How many times has a no confidence motion been passed? Any idea? Zero. All no confidence motions have been defeated or have been inconclusive. We've had 0 no confidence motions that have been passed, but 3 confidence motions have failed. ठीक है?
yes. 1979 में बस बात पहुंचते पहुंचते रह गई. There was a motion which was moved against Morarji Desai, led to his resignation. डिबेट भी इनकंक्लूसिव था, वोटिंग नहीं हुई थी. हाँ, ठीक है. Clear? Yeah. Three confidence motions have failed. 0 non-confidence motions have been passed. No, you don't need to know which ones have not required. ठीक है. What if a no-one is against the council? But it does also mean the PM should. Yes, council minister resigns, PM also resigns. Yes. If the president appoints an alternate COM post resignation due to NCM, then new government continues for the remainder of the term. Yes. Good evening. I have a doubt regarding the state name change. Can state name recommend? You can recommend, but doesn't matter. Ultimately, it is the parliament who does it. Yes. VP Singh, Devgowda, and Vajpayee ji. ठीक है. All right. अभी बैठ रहा हूँ बेटा, रात को सुबह तक निपटाता हूँ. टुमारो आई एम टेकिंग द क्लास एट 9. मेरे को थोड़ा कंटिन्यूटी में रखना है. हिमांशु को भी क्लास लेनी होगी तो यस, हिमांशु विल टेक अ क्लास लिटिल अर्लियर इन द. ठीक है, हिमांशु सर विल टेक अ क्लास अर्लियर इन. बाय द वे, Ekansh has 129 in GS paper 2. He is most likely the country topper in GS paper 2. And 134 in essay. In ethics, sorry. The only thing is that it gives you a sense of relief and confidence that whatever you're trying to do with the subject and the exam is working. Because there's a lot of risk, you know. Chalo. Commerce and accountancy, I'll ask him for sure. Don't worry. Don't worry. Of course. ठीक है, Shikhar has write to me. We'll figure out time to talk. Chalo, see.